Assalamualaikum warahmatullah. It is now third day. Yesterday they had an exposure of I think more than 2 hours in food science and technology lab. They were explained about the different equipments. Now today we have with us Professor Javed Ahmed Sofi Sahab. He is an expert from soil science, but you can discuss any sort of chemistry, physics, physical laws, chemical laws. You can discuss with, and we can discuss all aspects of basic science across subjects. He is well versed with the knowledge. He has an experience in your research center and research center for residue and quality analysis. He served as a head there for so many years. In addition to that, he has contributed to that center in the shape of funding around, I think, more than 6 crore. More than 6 crore, and he is the person who actually, especially you must know because you are the student from that part, he is the person who actually bought that project and funding under APIDA. Whatever labeled is there, it's APIDA. He is actually the person who has contributed. And in addition to that, we recently got there that Kyoto. Actually, it is the funding of Professor Javed Sahab. Because the project is still under his control, under NABARD funded project, and he has contributed in that. In addition to that, he is the author of so many publications, so many books and books across, including some of the applied chemistry part, analytical chemistry, and soil science, soil chemistry, and above all, because there I feel we are colleagues, that's nanotechnology. He has also contributed in that field, and he is also working in that direction, and I think there are few patents in the process as well. So I have not taken any CV from him the way I explained yesterday about other scientists, the same way what I generally know, but many of the times scientists do not express all their contributions on while discussing. So there may be so many other things he has contributed in that field, but what I, in addition to know regarding him, he is a very active person on this SSTA group. He doesn't write any politics or any problems faced by the scientists and other things there, or any thing regarding an institution. He writes always some scientific concepts and invites discussion. Means you are blessed that a person with whom you can discuss any topic of basic science and you can have a good knowledge, and I think he will not be using this PPT mode. He will be using pen and board, marker and board, and he will be explaining you all the concepts there. And it will be followed by a practical, maybe immediately, or we are seeing if some other lecture is then in afternoon. You will be having at least 2 hours with him in the lab. While whatever is being explained here, that will be properly shown you will be exposed to that, because at the end you will be in future the end users of these equipments, and it will be helpful for us all. Sir, thank you for inviting, accepting our invitation. Thank you. We are very blessed, sir. Thank you. Thank you. Please, sir, continue. Have compounds, but these compounds are in mixture. Suppose if you take a leaf and you will extract the leaf, you take juice out of it. You take apple, you take juice out of it. It will have different compounds. What compounds? Chlorophyll A. It have carotenoids. It have quercetin. It have alkaloids, flavonoids, so on and so forth. Similarly, in our blood, we have different compounds like vitamin B, hemoglobin, creatine, so on and so forth. So, what will be our purpose? Our purpose is that we have to, first of all, separate these compounds. Separation science. Suppose I have a bottle in my hand, and this bottle contains compound 3. Suppose it contains vitamin C, it contains chlorophyll A,
and it contains vitamin B. For example, for the sake of argument, these compounds are in the mixture. We don't know what is there. Absolutely, we don't know. So, can you tell me how we can separate these compounds? Just discussion. No, तो ठीक है कैसे? Suppose we don't have mass spectrometry in our hand. We don't have HPLC in our hand. हमारे पास नहीं है suppose. तो हम कैसे इनको करेंगे अलग अलग? ऐसे हम डिस्कशन करेंगे. हमारा पर्पस क्या है? जो आपके हाथ में बोतल है, उस बोतल में कंपाउंड्स 3 हैं. कंपाउंड ए, कंपाउंड बी एंड कंपाउंड सी. आपका पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये कि इन कंपाउंड को अलग अलग करना है. वी हैव टू सेपरेट दिस कंपाउंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कैसे करोगे आप सेपरेट? समझ आ रहा है? सो इट इज अ बोतल. इट कंटेन कंपाउंड ए, बी and C. We cannot see them with our eyes, but we have some faint idea that the extract of the leaf, it contains 100% chlorophyll. It is a green leaf, है ना? ये तो है, and it contains flavonoids and alkaloids. ये 3 compound इसमें है. Now our purpose is to first all separate them. How you will do it? You will do one thing. We don't have HPLC in our hand. We don't have mass spectrometry. Nothing in our hand. हमारे हाथ में कुछ नहीं है. तो कैसे करेंगे हम? We take a piece of paper. ठीक है? Piece of paper. ये हमारे पास पेपर है. You will take what you will do. You will purchase chlorophyll A on the market. From the pure chlorophyll A. Pure. What does that mean? It is exclusively chlorophyll. That market, they will give you a certificate that's called COA. That's called Certificate of Analysis. US based company, they will tell you by जो ये मेरा कंपाउंड है आपको बोतल में दे दिया, इसमें खाली क्लोरोफिल है. ये मेरी गारंटी आपको. ये आपने मार्केट से, ठीक है? So what you will do when you purchase small compound in a small bottle, it contains chlorophyll. You will take a small drop of chlorophyll and put the paper. ये आपके पास क्या है? पेपर शीट, सिंपल पेपर. इसको आपने पेंसिल से पहले मार्क किया. इधर आपने मार्क किया ऐसे, और ऊपर भी एक ऐसा लाइन डाल दिया. You will put this drop here. You will take chlorophyll, some sure, put drop here. Then you will take this piece of paper, put into the solvent, put in the acetonitrile or methanol. You take a beaker, here you will put acetonitrile or methanol. You will wet this piece of paper lower end. उसको lower end उसको wet कर लोगे. You will not dip the whole paper into the solvent. खाली you will touch the end of the paper with this solvent. हल्का सा इतना आप इसको dip करोगे, यहाँ तक बस. जो लाइन है ना इसके नीचे. What will happen? अब क्या होगा? पेपर wet हो जाएगा. जो wetness है ऊपर जाएगा, ठीक है सर? ये wet हो जाएगा. ये जो पानी है, ये जो solvent है, it will go up, and when it will reach here, you will remove the paper from the tank. We call it tank, which contains solvent. You will remove the paper and dry it. Now the question is, why this solvent will rise up? बताओ. क्या बात? Capillary reaction, very good.
Paper is cellulose. Paper is, it contains small micropores. When you put a small micropore into the water will run immediately, automatically, spontaneously. Why? Capillary action. What's capillary action? So physics, in short, water will rise up. It will rise up and we will remove the paper. Now, when the solvent will rise up, it will dissolve this chlorophyll, which we put it at this point. It will also go up, and it will go here. We'll measure the height. From total height is this is this height. Total height कितनी है? यह height कितनी है? समझा रहा है? नहीं समझे? Height of solvent. वो क्या height है? This height, पूरी height यहाँ तक. Divide by height of chlorophyll. जहां तक यह height है, उसको बोलते हैं RF. क्या बोलते हैं? Retention factor. क्या बोलते हैं? समझो? यह आपने पता कर लिया. Suppose यहाँ आ गया 0.2. For example, 0.8 आ गया. तो पता चला when we put the pure chlorophyll on the paper and we dip this paper in a solvent tank which contains a specific solvent like acetonitrile or methanol. Through the capillary action, the solvent will go up automatically, spontaneously, and this chlorophyll will also go up because it will be dissolved by the solvent. It will go up, and we will measure the height. What is the total height of the solvent? What is the height of that molecule? We call it RF. We call it यहाँ तक ठीक है? Sure. Now what we will do? We will now put this mixture, which contains chlorophyll A, vitamin B, or some other compound. We will take one drop and put here. We take another paper. Suppose we take other paper here. Solvent tank. We will take one drop, put it here. What will happen now? What will happen, Shabash? Capillary will take place, the solvent will go up. Which contains a mixture of compounds. What is going to happen? Shabash. It contains compound A, B and C. They will move with a different speed. Why? Some compound have one speed, other have other speed. Why it's so? Some is more viscous, some is less viscous. So they will have different speed, differential speed. They will move at a different rates. So it will go separate. One compound here, one compound here, one compound here. It will separate them. Now tell me, among these three spots, which is compound A, compound B and compound C, among these three spots, one spot is chlorophyll A. How you tell me that spot this or spot this is chlorophyll A? ये कैसे बताओगे आपने? शाबाश, किसे बताओ? RF. इसका RF क्या आया था? 0.8. अगर इसका RF 0.8 आ गया, उसका मतलब क्या है? This way we separate the compound, or we came to know that this spot, this compound is chlorophyll A. अब समझे? नहीं समझे? सारे समझ गए? Yes, I understand. Very good. So it is called qualitative test. आपने क्वालिफाई कर लिया कि मेरा जो मिक्सचर है इसमें एक कंपाउंड क्लोरोफिल ए। क्वालिटेटिवली आपने बताया क्वालिटेटिवली ये कंपाउंड ए है, वो
वो कैसे बताया आपने? ऑन द बेसिस ऑफ रेफ्रिजरेशन फैक्टर। इसकी बुनियाद पर आपने बता दिया कि मेरा कंपाउंड ये क्लोरोफिल ए है या वट एवर कंपाउंड इट इज। वो कैसे बताया आपने? बिकॉज यू परचेज द प्योर कंपाउंड फ्रॉम द मार्केट, प्योर, दैट्स कॉल्ड CRM, दैट्स कॉल्ड सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, दैट्स कॉल्ड सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, CRM. They will give you COA, certificate of analysis. They will tell you by जो मेरा कंपाउंड है it is 99.9% pure. They will certify it. Samshwan? Then on the basis of this, then you take the pure compound, take the one drop on the paper and put the paper in a solvent tank, and to the capillary action the solvent will go up, and this compound will also dissolve in the solvent. It will go also upward direction, and you will determine the RF. What's RF? Height of solvent depends on the height of compound. That's why you mark the line with pencil here and here, because you have to find RF. Then you put the mixture, unknown mixture, put the same drop here and determine the RF, and will come to know by my compound is in this mixture. I have the compound that is chlorophyll, which I am searching. For example, ये आपने पता करें। यहाँ समझाया पूरा? कहीं समझ आ गई? Okay. Now how you will quantitate it? Sure? इस क्लास में this man, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे अपने घर के लिए, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, लेकिन इनकी शक्ल तीनों की सेम है, तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया। कैसे? इनको मैंने रेसिंग कराई एक बड़ी लाइन में, ये आगे आ गया, ये जब आगे आ गया, ये मेरा बंदा है, इनको भी मैंने रेसिंग कराई। किस पे? पेपर पे। ये मूव हो गए विद डिफरेंट रेट्स, जो उसके बराबर आ गया RF, वो मेरा कंपाउंड है। Now, how you will quantitate it now? ये कितना है? 1 ppm है, 2 ppm है, 5 ppm है, वो कैसे पता करोगे आप? बताओ। समझो आप? To try to understand the concept or body shape. Concept समझो खुदा के पास। Yes, you always समझ? बताओ? शाबाश। Now, how you will quantitate it? What you will do? You will suppose this spot is chlorophyll A. You will remove it with the paper को remove करोगे आप। You will remove this paper. समझो? और ये स्पॉट इधर आ गया, ये पेपर मैंने इस पे डाल दिया ना, पेपर मैंने इस पे डाल दिया, पेपर ऐसे यहाँ मुझे लाइन मार दी, यहाँ लाइन मार दी पेंसिल से, यहाँ मैंने कंपाउंड डाल दिया एक, या यहाँ आ गया, उसको मैंने रिमूव कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया ऐसे, ये पेपर ऐसे निकाल दिया, इस पे स्पॉट था, ये निकाल दिया मैंने, ठीक है, निकाल दिया और डाल दिया बीकर में, डाल दिया बीकर में, जब बीकर में डाल दिया और उसमें मैंने एक कोई सॉल्वेंट ऐड किया ACI, और उसको शेक किया ऐसे ऐसे 2 दिन और 2 days 3 days, क्यों? ताकि वो स्पॉट उस पेपर से बाहर आ जाए, वो आ जाए उस बीकर में। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन। तो उसको निकाल के अब मेरे बीकर में कंपाउंड कौन सा है? क्लोरोफिल A। साइन होगा, इट इज नाउ क्लोरोफिल A। आप उसको मेरे को करना है क्वांटिटेट, कितना है, कैसे करोगे आप? बताओ, ये तो पता होना चाहिए आप। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? So you have from management background. This is all going over the head. Okay, sorry. आप now अब मेरे बीकर में क्या है? वो मैंने सेपरेट कर लिया, सेपरेशन कर लिया, वो समझ आ गया? बस बताओ समझ आंसर बड़ी तो ये मालूम है कि चलो लीजिए, आपको समझ आ गया, सेपरेशन समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया, तो मैं क्वेश्चन पूछूं, समझ आ गया बेटा? अब आपने ये कंपाउंड, वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल साइंस दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR, electromagnetic
radiation, EMR. It contain different bands. Contain different bands. कौन कौन से bands में होते हैं बताओ? ये मुझे कम से कम ऐसे मायने नहीं चाहिए एग्रीकल्चर गेम्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन से बैंड्स होते हैं? लाइट में मतलब क्या होता है? एक होता है कौन सा पोर्शन? विजिबल पोर्शन, इंफ्रारेड और शाबाश विजिबल पोर्शन, इंफ्रारेड, यूवी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इसको पता सुना? सो जो हमारा केमिस्ट्री का होता है दैट इज विजिबल पोर्शन, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एनआईआर एंड एमआईआर। ये 5 रेंज हमारे काम के होते हैं यूजुअली, ठीक है? ओके, डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ क्या होती है उसकी बेस पर हम उनको क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं क्लासिफाई? विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव लगेंगे इसके। ये 3-4 बैंड्स हमारे लिए। अब क्या होता है व्हेन वी पास द विजिबल पोर्शन और अल्ट्रावायलेट इनटू द मैटर, किसी मैटर में जब इस लाइट को हम पास करते हैं वो मैटर उसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब। समझो? मैटर बोले तो क्लोरोफिल, एनीथिंग, कुछ मैटर, एनीथिंग। अब मेरे बिकर में क्या है? जब इस क्लोरोफिल के पास मैंने लाइट पास कर ली, कौन सा बैंड? विजिबल या अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड या नियर इंफ्रारेड या मिड, ये कंपाउंड इसको एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? एब्जॉर्ब। ये याद करें, एब्जॉर्ब। अब क्वेश्चन है, आप सवाल पूछते नहीं हो अनफॉर्चुनेटली। आपको पूछना चाहिए था सर एब्जॉर्ब क्यों करेगा? क्यों करेगा एब्जॉर्ब? हाँ, क्यों करेगा एब्जॉर्ब? Every compound has different characteristics. Correct. Very good. Every compound has different characteristics. So what does that mean, characteristics? Reflectance power, absorbance power. That's what ठीक है, तो चुका है चार। Every compound is 100% correct. But आप देखो ये छोटा नोट याद है। Please try to respond. जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, if it is nonsense questions, no issue. But I request all of you, in future also, in your life also, as a scientist, always ask questions. This is very fundamental. जो बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसको समझो वो उसका वो खेल खत्म करो। जो आपके मन में आए, इसने बता दे मेरे बेटे ने गुड, आई एम हैप्पी, लेकिन आप बाकी मतलब डोंट रेस्पॉन्ड अनफॉर्चुनेटली। एनीहाउ, we have different bonds in the molecules. कौन कौन से bonds होते हैं बताओ? हाँ? Ionic bond, covalent bond. Ionic bond is very, वो हमारे काम में नहीं आता है। फिर क्या रह गया? Covalent bond. Covalent bond में क्या होता है? Sigma bond, pi bond, ठीक है सर? And lone pair electrons. 3 bonds we have. And we have transitions. We have electron transitions. Electron jump करते हैं. And we know from the molecular orbital theory there is bonding and antibonding. That is sigma bonding and sigma antibonding. So depending upon the characteristic of the molecule, which this person said, it is the innate nature of the compound whether it contain bonding or antibonding. Sigma bonding, sigma antibonding. Pi bonding, pi antibonding. Different configuration of the bonding, it will absorb the radiation. Again, it depends upon its bonding and antibonding vis-a-vis sigma and pi. We don't have time. What is this molecular orbital theory? What is sigma bond? What is pi bond? Sigma bond एक बात strong bond है, पढ़ा है ना आपने? हमारे पास भी time नहीं है. So in short, depending upon the characteristics of the compound, it will either absorb ultraviolet or visible portion. और infrared portion, depending upon the compound. अब आपके पास क्लोरोफिल ए, अब आपके पास
अब वो क्लोरोफिल आपने एक डाल दिया एक क्यूवेट में, एक यूनिवर्स क्यूवेट है ना, वो आपने इसमें डाल दिया, एक ml डाल दिया। वो कहां से निकाला आपने? थ्रू सेपरेशन साइंस से, उसमें आपने डाल दिया और आपने ये डाल दिया एक इक्विपमेंट, उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाल दिया और आपने उसको स्कैन कर लिया। क्या कर लिया? एक अदर ऑप्शन स्कैन, दैट विल गिव ऑल रेडिएशंस, इट विल गिव all visible portion, all ultraviolet portion, all infrared or near red. It will give all radiations, all wavelengths, and we will find out कि इसमें lambda max कहाँ आता है? Lambda, where it will show the maximum absorption, वो मशीन आपको बता देगी। All wavelengths, and the equipment will tell you कि maximum absorption किस wavelength पे ये दिखाता है। That's called lambda max. Even machine पाने वो आपने पता, सपोज 312 नैनोमीटर पे ये maximum absorption दिखाता है, सपोज 312। अब आपको पता चल गया जो मेरा कंपाउंड है ये maximum absorption दिखाता है अल्ट्रावायलेट पोर्शन में किस वेवलेंथ पे? 312 नैनोमीटर पे। ये भी आपने पता कर लिया। पहले काम आपने क्या कर लिया? पहले आपने सेपरेट कर लिया, वो समझ आ गया? वेरी गुड। फिर आपने क्या कर लिया? फिर आपने इस कंपाउंड को पेपर से बाहर निकाल दिया और डाल दिया बीकर में, उसको पूरा सॉल्युबलाइज कर लिया। उसके बाद क्या कर लिया आपने? आपने पता कर लिया कि ये जो मेरा कंपाउंड है वेयर इट विल शो द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, वेदर इन अल्ट्रावायलेट और विजिबल। वो आपको इक्विपमेंट खुद बता देगा। वो भी हम कर सकते हैं मैन्युअली, वो मसला नहीं है। ये भी आपने पता कर लिया। अब आपके पास डेटा आ गया है भाई, मेरे पास जो कंपाउंड है क्लोरोफिल ए, उसको मैंने सेपरेट किया तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से ये जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है EMR का, वो है 312 नैनोमीटर पे मैक्सिमम दिखाता है। Now what you will do now? You will again purchase pure chlorophyll A, CRM, certified reference material. वो अपने परचेज पहले ही किया है। You will make the working standards from the CRM. You will make working, वो क्या हो गया? उसका मतलब क्या हो गया? शाबाश, डिफरेंट कंसंट्रेशन, वेरी गुड वेरी गुड। वो बना दोगे आप। सपोज आपने बना दिया 0.1 ppm, 0.5 ppm, 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, ये आपने बना दिया। अच्छा आप मुझे बताओ, आपको आता है बनाना? ये नहीं आता है। बताओ कैसे बनाओगे 100 ppm? बताओ स्टॉक कैसे बनाओगे? आपको बनाया, ये आपके पास बोतल है, इसमें आपके पास क्लोरोफिल है, ठीक है? आपको बनाना है 100 ppm। कैसे बनाओगे? तो वो हम करेंगे लेबोरेटरी में, ठीक है? वो लैब में करेंगे। एनी हाउ यू मेक इट 0.1, 0.2, 0.3। अब आपने 0.1 ppm उठाया, डाल दिया किसमें? क्यूवेट में। क्यूवेट देखा है? अच्छा, उसमें डाल दिया और आपने लगा दिया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल दिया। ये क्या कह रहा? आपने कौन सी वैल्यू यूज की? 312। वहां आपने मैन्युअली एंटर किया 312। क्यों? आपने पहले पता किया है 312 पे मैक्सिमम दिखाएगा, वही अब आपने छोड़ दिया 312, बाकी आपने कैंसिल कर दिया। अब आपने 312 छोड़ दिया किसमें? 0.1 ppm। क्या छोड़ दिया? 312। शाबाश, आपने छोड़ दिया ये 0.1, फिर 0.5, फिर 1, 2, 3। यहाँ पर क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन जाएगा। 0.1 पे आएगी एब्जॉर्प्शन ये,
इट विल एब्जॉर्ब। पॉइंट 2 पे क्या होगा, पॉइंट 5 पे क्या होगा, शाबाश, ज्यादा, वेरी गुड, एब्जॉर्प्शन ज्यादा आएगा, इधर आएगा। पॉइंट 1 पे ज्यादा, 2 पे, 3 पे मेजर करो स्ट्रेट लाइन। आपकी लाइन में जितनी जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी उतनी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। रूट है ये, आपने लाइन बनाई है, लाइन इज स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या किया आपने, यू परचेज CRM वर्किंग standard of a known concentration from the market and you make different concentrations of this solutions। ठीक है, अब आपकी लाइन आ गई स्ट्रेट लाइन, शुड कम स्ट्रेट लाइन ऑलवेज एंड इट शुड कट थ्रू 0। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, शाबाश, y is equal to mx plus c। What's m, what's y, absorption, what's x, concentration, what is c, intercept। ठीक है, this is absorption, this is concentration, this is slope and this is intercept। Some sure? I assume that you know straight line, I assume this, huh? We will not discuss on that now। mx plus c is equal to mx is equal to y minus x is equal to y क्या है, m क्या है, c क्या है, इंटरसेप्ट, x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। अब आपने वर्किंग स्टैंडर्ड लगाई 5, ठीक है ना, पॉइंट 1, पॉइंट 5, 1, 2 and 3, और आपने वो बीकर उठाया जिसमें आपने क्लोरोफिल A सेपरेट किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो आप डाला किसमें, क्यूबोर्ड में। ये क्या दिखाएगा, ओनली एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। वो अपने निकालोगे इससे क्या दिखाएगा, C आपके पास है, M आपके पास है, you will determine the X। आपने अब अननोन कंसंट्रेशन पता कर लिया, नहीं समझे, समझ गई, चूर बुत बना वन सुनो बना तो गुरु दाम वाई तो आ गया सर, लेकिन समझिए वही तो आपको जब आपने वो कंपाउंड ए निकाला था पेपर से, उसको डिसॉल्व किया था बीकर में, उसकी कंसंट्रेशन आपको पता नहीं थी, जब आपने क्यूट में डाल दिया वो आपको दिखा खाली एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन आपके पास आ गई, वाई तो आपके पास आ गया, सी एंड एम आपके इस लाइन की होती है आपके पास, निकाल दिया एक्स आपने ऑफ अननोन से समथिंग, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन करो। क्या बोलते हैं, तो था तो दो चीजें हमने कर ली, क्या किया, पहले सेपरेशन, उसके बाद क्वांटिफिकेशन, दोनों कर लिया, पक्का, अब हमने दोनों कर लिया, वेरी गुड। लेकिन अब दिक्कत आ रही है हमको दिक्कत, यहां तक समझ कहानी समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है। अब दिक्कत आ रही है, अब पेपर को मुझे लाना है, पेपर में मुझे ये ड्रॉप डालना है, फिर सॉल्वेंट टैंक में डालना है, इट टेक्स 1 day टू राइज आप, फिर उसमें स्पॉट्स क्लियर नहीं आते हैं, तो हमको दिक्कत होती है, और कभी कभार क्या होता है सेपरेशन पूरा नहीं होता है, तो फिर सब प्रॉब्लम। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी और TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज ओके फॉर ओके, लेकिन it is not, it's tedious, it's cumbersome, it's very hectic, and it's not sensitive also, it's not so sensitive, it's not perfect in the sense, and it takes time for the solvent to rise up। अच्छा, अगर मेरे पास ऐसा कुछ होगा जो solvent को धक्का देगा ऊपर जल्दी, आपको ब्रो तो ना कुछ होगा, अगर जल्दी होगा, अब मेरे पास कोई पंप होगा, पंप ने धक्का दिया सॉल्वेंट को, पे चलो आगे तेज, तो तेज, अच्छा कैसे, ये तक तेज से जल्दी, इट विल गो राइज वेरी क्विकली, कैसे, ये तो पंप हम कर सकते हैं अरेंज, पंप अरेंज कर सकते हैं पंप पिस्टन से, मगर जो पेपर आपका है, पेपर में पोर्स बड़े बड़े होते हैं, कैपिलरी होती है लेकिन पोर्स बड़े बड़े होते हैं, जब पोर्स बड़े बड़े होंगे तो सेपरेशन अच्छा नहीं होता है,
अच्छा, अगर मेरे पास ऐसा कुछ होगा जिसमें पोर्स बहुत स्मॉल हो गए, बहुत स्मॉल पोर्स हो गए, तो उसमें क्या होगा? उसमें सेपरेशन अच्छा होगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मॉलिक्यूल्स जाएंगे और अच्छे होंगे सेपरेट। तो उसके लिए पंप भी स्ट्रांग चाहिए। जितने जितने पोर्स छोटे होंगे उतना उतना पंप को ज़्यादा धक्का देना है ना? तो हमने क्या कर लिया, हमने लाया HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफ। सिंपल लैंग्वेज में हाई परफॉर्मेंस। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक लाया, एक उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी फेज। क्या बोलते हैं? हमने एक स्मॉल ट्यूब लाया, जो बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम के अंदर से हमने पार्टिकल लगा दिए। क्या लगा दिए? पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल C18 क्या हो गया? C18 C1 2 3 4 18 तक बड़े कार्बन की चेन है। इसमें H CH3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगाए। वो एक मैंने मटेरियल आया जिसमें 18 कार्बन बैकबोन होता है, 18 कार्बन का बैकबोन होता है, और इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। HCH3 वो हमने बनाया, लैब में बना दिया, और वो हमने कॉलम के अंदर से लगी, मतलब कॉलम के अंदर की हमने उसको कोट कर दिया, कोटिंग कर दिया, शाबाश, कोट कर दिया। और उसका पार्टिकल रखा हमने बहुत छोटा, 5 माइक्रोमीटर, कितना? स्मॉल पार्टिकल। अब जब आपका कंपाउंड इसमें जाएगा, इन पार्टिकल में जाएगा, और इट विल डू, इट विल मूव वेरी स्लोली, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत बहुत छोटा है। आपके पास एक बड़ी रेत है, रेत का साइज बहुत बड़ा है, रेत का साइज बड़े बड़े रेत के दाने हैं, उसमें हमने पानी डाल दिया, क्या होगा? फटाफट पानी नीचे आएगा। अब आपके पास दूसरी रेत है, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, अब क्या होगा? पानी को आहिस्ता आएगा। इसी तरह से जो जो पार्टिकल छोटे हो जाएंगे, टाइम लग जाएगा चलने में, क्योंकि पार्टिकल छोटे हैं। उसके लिए पंप चाहिए। क्या चाहिए? जिसको धक्का देगा, भाई चलो आगे, पंप फिर पुश। ठीक है? तो इस तरह से हमने इन्वेंट कर लिया हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफ। अब उसमें क्या होता है? पहले कॉलम क्या होता है? C18 या C8 या C4 या C6 डिफरेंट कार्बन बोन का, कार्बन बैकबोन का कॉलम पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल के डिफरेंट साइज होते हैं, 5 माइक्रोमीटर टू 1.7 माइक्रोमीटर, वो बहुत छोटा होता है। डेट्स कॉल्ड UHPLC, वो पढ़ेंगे। ये हमने पहले बना दिया, और हमने पंप भी बना दिया, स्ट्रॉन्ग पंप बना दिया, 400 बार जो प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, वो भी हमने बना दिया। अब हमने क्या कर लिया, बोल गई, बोर तो नहीं हो गई? अब हमने क्या कर लिया, हमने ये आपका पंप है, ये आपका कॉलम है, ये आपका सॉल्वेंट है। इसमें आपने रख दिया मिथनॉल और एस्ट्रोएट्राइल। पंप ने इसको खींचा नीचे, चलो भाई नीचे आ जाए। पंप ने इसको ऐसे नीचे लाया, और पंप किया किसमें? कॉलम में। उसको बोलते हैं मोबाइल फेस। क्या बोलते हैं? मोबाइल फेस है, हम श्योर? मोबाइल फेस कहां से आ गया? ऊपर सॉल्वेंट। सेकंड चाइल्ड वो किसमें है? कॉलम में, कोट किया अंदर से, उसके अलग अलग पार्टिकल साइज है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है? अब पंप ने क्या कर लिया, पंप ने सॉल्वेंट को लिया और धक्का दिया किसमें? कॉलम में। शाबाश, कॉलम, वेरी गुड, कॉलम धक्का दिया। और इसी कॉलम में मैंने कंपाउंड भी डाल दिया अपना क्लोरोफिल। जब मैं घुसवा दो, चलो भाई चलो, ठीक है? अब क्या करेगा पंप? धक्का, अच्छा वहां आवाज टक टक धक्के दिया, कहा सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट में क्या है? कंपाउंड भी है आपका, कंपाउंड चलेगा आगे आगे थ्रू पोर्स, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, अल्टीमेटली बाहर आएगा, इधर से बाहर आएगा। यहाँ पर क्या है? डिटेक्टर। क्या है?
वो कौन सा है? वही अल्ट्रावायलेट। वो क्या छोड़ देगा आपका? रेडिएशन। कौन सी? लैम्डा मैक्स, जो आपने पहले ही पता किया था, जो हमने पहले पता किया वो आपने नोट किया इसमें। लैम्डा मैक्स है 312, उसको बोल दिया। इसको वहां से आ गया कौन सा? कंपाउंड। उसने क्या दिखाया? एब्जॉर्प्शन। अब मुझे इंपॉर्टेंट चीज, ये कंपाउंड जो है ये मुझे 10 मिनट के बाद वहां से निकला। ये जो कंपाउंड, उसको चलना है ना, इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम, उसको चलना है यहाँ से ऐसे 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 आते उसको लग गया, सपोज उसको लग गया 8 मिनट। उसको लग गया 8 मिनट के बाद मेरा कंपाउंड कौन सा आ गया? क्लोरोफिल, जिसको अल्ट्रावायलेट ने अपना रेज छोड़ के उसका दिखाया एब्जॉर्प्शन पीक। तो मुझे पता चला 8 मिनट के बाद मेरा कंपाउंड कौन सा आएगा? क्लोरोफिल। ये 8 मिनट के बाद आएगा इस कॉलम पे। अगर मोबाइल फेस वो होगा ACN, समझो ये नाम समझ। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है, उसका न्यू वर्जन है। अगर मैंने कॉलम लगा दिया C18 और मोबाइल फेस रख दिया ACN, पंप ने उसको धक्का दे दिया, तो मुझे पता चला 8 मिनट के बाद मेरा जो कंपाउंड आएगा, जिसकी पीक आएगी, पीक कैसे आएगी? वो मेरा क्लोरोफिल है, वो मेरा क्लोरोफिल A है। अब मैंने ले लिया विटामिन B, उसको भी ऐसे होगा, वो आ गया 6 मिनट के बाद। अब विटामिन C वो आ गया 3 मिनट के बाद। अब इनको मिक्स कर लिया, डाल दिया इसमें, चलेंगे 3 चलेंगे। शाबाश। जो 8 मिनट बाद आएगा वो क्या होगा? जो 6 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद। वेरी गुड। इसको बोलते हैं रिटेंशन टाइम। क्या बोलते हैं? RT की बुनियाद पर मैंने बता दिया, हाँ ये मेरा कंपाउंड है, और मैंने क्वांटिशीट भी किया। कैसे? जो मैंने आपको पहले बताया, मैंने प्योर कंपाउंड रन किए, कैलिब्रेशन कर्व बनाए, उसकी बुनियाद पे मैंने विटामिन A, B और क्वांटिशीट भी कर लिया। मेरा मसला है, समझो कि ना? 100% मैं कुरान समझ बोल यहां तक समझा? कहानी यही। अच्छा, अब केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। वो था मैगी, हमारा मैगी का लैंड याद होता है। तो जब कोर्ट के पास केस आया, कोर्ट ने बताया हाँ जी ये तो लैंड है, पीक तो आ रही है 8 मिनट के बाद, करेक्ट है, वो तो लैंड है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला क्या ये पॉसिबल है कि 8 मिनट के बाद किसी मिक्सचर में कोई और कंपाउंड आ सकता है? लेकिन वो हाँ आ सकता है। देयर आर इनफाइनाइट कंपाउंड्स, यू डोंट नो। तो फिर कैसे छोड़ो पे यार, मैगी तो ठीक है, आप कैसे कर सकते हो ये लड़ाई? और सवाल समझ कीजिए। हमें 8 मिनट के बाद क्लोरोफिल A आ गया, लेकिन जो ही आपने एप्पल का रस निकाल दिया, जूस निकाल दिया, इसमें इनफाइनाइट कंपाउंड से मुझे क्या पता है कि 8 मिनट के बाद कोई और कंपाउंड होगा जिसका भी आर्टिस्ट वही होगा। नहीं समझे? तो अब क्या करेंगे? ये मसला आ गया। हालांकि वी डू दिस एनालिसिस through HPLC or gas chromatography in laboratory. It's well authenticated, no problem, no issue at all. We are quantitating vitamin C, vitamin B. मैंने काम किया है GMC कॉलेज से, विटामिन B हमने किया था ब्लड में through HPLC, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकती है। Don't be in the impression कि मैं आपको कुछ something wrong. No, there's no issue at all. मगर जब बात आती है विलेज का, आप ये विलेज का है, इसके पास 50 कनाल लैंड है एप्पल की, ठीक है। आपने एप्पल ले लिया, अच्छा एप्पल ले लिया और आपने उसको एक्सपोर्ट कर लिया USA को, पैसे कमाने हैं। अब US में लेबोरेटरी में गई आपके एप्पल, लेबोरेटरी में उन्होंने देखा इसमें पेस्टिसाइड है, आपका सारा कंसाइनमेंट वापस आ गया। उस टाइम मसला होता है। विटामिन C, विटामिन B, विटामिन D में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बात आती है पेस्टिसाइड की, एफ्लाटॉक्सिन की, हेवी मेटल की, और जब जाती है इंक कॉम्प्लेंस के बाद USA, इटली, रोम,
वो नहीं चलेगा वहाँ HPLC, क्योंकि RT कैन बी सेम। उस टाइम क्या करेंगे? उस टाइम हम करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। समझ आया? ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी। कहानी स्टार्ट होगी कि हमारे पास कुछ मिक्सचर है, उन मिक्सचर को हमको सेपरेट करना है। सेपरेट की सबसे आसान उसूल क्या है? मैंने बता दिया, वो आपके पास पेपर होगा। पेपर क्यों भाई? पेपर सेलो से स्मॉल स्मॉल पोर से कैपिटल के एक्शन वो ऊपर जाएगा सॉल्वेंट, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर डिफरेंट कंपाउंड होगी, उनकी अपनी अपनी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की बुनियाद पर उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। फिर मैंने बोला भाई ये तो इट्स वेरी टीडियस, कम्बरसम एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग दैट वी इन्वेंट HPLC और गैस क्रोमेटोग्राफी, जिससे गैस धक्का देता है या पंप उसको आगे बढ़ाता है। उसकी बुनियाद पर हमने RT तय किया कि RT की बुनियाद पर हम कंपाउंड को पता कर सकते हैं। और लैम्डा मैक्स है RT, ठीक है। देखिए इसमें मसला आ गया, सम कंपाउंड्स कैन हैव सेम RT है ना। अब हमने एक और नई टेक्निक डेवलप की, उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये हमने किया। अच्छा, इसकी टू टाइप्स है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इनमें उतना अंतर नहीं है, उसमें होता है सॉल्वेंट, होता है गैस, नहीं पाए। अब क्या होगा इसमें? इसमें होता है अटैच HPLC। क्या होता है HPLC का काम क्या है बताओ? नहीं वो तो ठीक है, प्रेशर। इसका फंडामेंटल काम क्या है HPLC? सेपरेशन। सिंपल, कॉलम के जरिए सेपरेट करना है, यही करना है ना। कॉलम में जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा सेपरेट, अलग अलग जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये इसका काम है। और वो डाल देगा किसमें? मास स्पेक्ट्रोमेट्री में डालेगा। वहाँ कहाँ था? अल्ट्रावायलेट विजिबल डिटेक्टर में था ना। वहाँ था डिटेक्टर, कौन सा? UV विजिबल, उसमें डाल दिया। उसने डाल दिया लाइट, जहाँ हो गया एब्जॉर्प्शन बता दिया। यहाँ कहाँ आएगा? मास। तो क्या होता है इसमें? इसमें HPLC से जब पंप ने धक्का दिया तो कॉलम से कंपाउंड सेपरेट हो गया, अपना RT उसने तय कर लिया। उस RT 8 मिनट के बाद उसने वो कंपाउंड डाल दिया किसमें? मास डाल दिया उसमें। तो एक उसमें एक आती है ऐसे, ये आपका कॉलम है, कॉलम होता है, एक होती है ऐसे, एक तार होती है कैपिलरी ट्यूब। क्या होता है? वो आ गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये कैपिलरी है, यहाँ ऐसे होता है एक स्मॉल कोन, स्मॉल निडल होती है, इसके अंदर जाएगा ये रस, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जाएगा। समझो आप? कि ना समझो। और ये बहुत होता है हीट हाई, वी पुट टेम्परेचर वेरी वेरी हाई। फिर टेम्परेचर हाई होगा, जो भी कंपाउंड उस सॉल्वेंट में होगा, सॉल्वेंट में वो सॉल्वेंट सारा हो जाएगा वेपराइज। फिर क्या रहेगा? कंपाउंड खाएगा। जो कंपाउंड थे स्मॉल स्मॉल स्प्रे, और स्प्रे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ऐसे ऐसे आएंगे, यहाँ से ऐसे आएंगे, बड़े पार्टिकल स्प्रे स्मॉल स्प्रे। जब पार्टिकल बड़े हो जाएंगे और ये हीट होगा, अच्छा कैसे? ये फिटे लॉक स्प्रे लगा पार्टिकल बना, और जिसका पानी होगा वो जगह वेपराइज। एंड वी पुट नाइट्रोजन गैस हियर आल्सो, नाइट्रोजन गैस, जिसको थोड़ा धक्का देगा। नाइट्रोजन गैस क्यों? बिकॉज़ इनर्ट शार्प, वेरी गुड। और यहाँ क्या आएगा? स्प्रे आएगा, स्प्रे आएगा। and we put a voltage here, the small two plates, that voltage. What we will do in LCMS, याद रखिए मेरी बात, we have a solvent, we have a solvent, इससे होता है HPLC में, but we will put some formic acid also, which will protonate the compound, which will, वो प्रोटॉन उसमें ऐड करेगा, क्या करेगा? प्रोटॉन, क्या करेगा? प्रोटॉन प्लस H ऐड करेगा,
अगर इसका मास होगा 314 मास से बन जाएगा, उसका वजन क्या बन गया 21, लेकिन चार्ज हो गया प्लस, नहीं मुझे चार्ज हो गया प्लस, बन चार्ज प्लस, समझो प्लस चार्ज मास का अलावा you should work please when you charge capacity nitrogen gas but हवा मुद्दन because उसमें should not liquid but your compound capacity means solid externals like say chambers बस chambers ना तो quadrant समझे quadrant बोले quadrant we have three things तो ना बोल मत लेकिन stop बोलूँ क्या यहाँ समझ आया बता आप बता क्या सर आपने पहले बताया किस तरह से सेपरेट करते हैं और फिर क्वांटिफाई कैसे कोई कंपाउंड करते हैं इन मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, उसके लिए आपने डिफरेंट टेक्निक्स बताई, जैसे पहले स्पेक्ट्रोमेट्री का थोड़ा सा बताया, फिर उसके बाद HPLC पे आए आप, उसके बारे में बताया, और उसके बाद बताया किस तरह से हम क्वांटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, उसे हमने कर दिया किस तरह क्वांटिफाई करेंगे डिफरेंट कंपाउंड। उसके बाद आप अभी बता रहे थे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में बता रहे थे, और HPLC के बारे में बताया, इसी में कुछ कॉन्सेप्ट्स आए हमारा रिटेंशन टाइम के बारे में, रिटेंशन के बारे में, लैम्डा मैक्स के बारे में बोला, एब्जॉर्बेंस के बारे में बोला, उसके बारे में रिगार्डिंग रिटेंशन टाइम में दिक्कत आई थी कि चांसेस सेम है। ये बंदा इस कमरे के से बाहर निकला 5 मिनट के बाद, ये निकला 8 मिनट के बाद, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है, थोड़ा तेज चला, थोड़ा स्लो चला, लेकिन चांसेस है जो कोई भी बंदा होगा जिसका वजन सेम का होगा वो सेम टाइप का है, इस टाइम क्या करेंगे, इस टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमने ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री स्टार्ट करें, समझो प्रोस एंड कॉन्स। तो हमें क्या कर लिया, HPLC से मैंने पहले कंपाउंड निकाल दिया बाहर एज पर RT, वे 8 मिनट के बाद मेरा जो कंपाउंड होगा ये कौन सा होगा, क्लोरोफिल, वो कैपिलरी से आ गया, एक स्मॉल पाइप से आ गया उस चैम्बर में, उस चैम्बर में क्या है, छोटा सा कोन है, क्या है, कोन है, कोन के साथ कोन, तो हम घूम सकते, और कैपिलरी से ये कंपाउंड आ गया, उसको मैंने हीट किया, उसको बोलते हैं कैपिलरी वोल्टेज, क्या बोलते हैं, टर्म याद, कैपिलरी वोल्टेज, इसको काम करना हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में तो कैपिलरी बोल याद, मरा उसको याद, कैपिलरी वोल्टेज हमें डाल दिया और डाल दिया गैस, डिसॉल्यूशन फ्लो, डिसॉल्यूशन टेम्परेचर, डिसॉल्यूशन देखो आपको सॉल्ट को बाहर निकाला है, इसी कंपाउंड इसमें सॉल्वेंट भी है, जब मैंने इसको कैपिलरी में डाल दिया मुझे निकाला है बाहर क्या, सॉल्वेंट पानी, वो कैसे बाहर निकालूंगा मैं, भाई हाई टेम्परेचर और हाई गैस फ्लो, कैपिलरी वोल्टेज, डिसॉल्यूशन प्रेशर 900 लीटर्स पर मिनट, तो मैंने गैस डाल दिया, नाइट्रोजन गैस फटाफट से, और टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया, सारा गैस बाहर गया, नाइट्रोजन क्यों, बिकॉज इट्स इनर्ट, और कंपाउंड आपका आ गया, और वहां से मैंने ऐड किया फॉर्मिक एसिड, उसने कर दिया प्रोटोनेट, ये बन गया M/Q चार्ज, उसका चार्ज आ गया, और डाल दिया कैपिलरी वोल्टेज, उसका चार्ज क्या है, प्लस, ये डाल दिया प्लस, नेगेटिव, तो अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट के अंदर गया चैम्बर में, चैम्बर में गया, चैम्बर में क्या होता है कहानी, चैम्बर में ऐसे होता है 1 रॉड 2 रॉड 3 रॉड और एक सेल, 1 रॉड 3 रॉड डिटेक्टर, इसको बोलते हैं क्वाड्रिपोल, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं Q1 Q2 Q3 एंड डिटेक्टर, Q1 Q2 and Q3, क्वाड्रिपोल 1, क्वाड्रिपोल 2 एंड क्वाड्रिपोल 3, समझ हुआ। अब मैंने क्या किया, इस चैम्बर को मैंने पूरा बंद किया, उसको वैक्यूम किया, क्या किया, इसमें एक होता है हमारे पास टर्बो पंप, क्या होता है, वो टर्बो को सारा एयर बाहर निकालता है, पूरा वैक्यूम कर दिया, वैक्यूम क्यों कर लिया, अब इसमें अब कंपाउंड आ गया, ये कंपाउंड को ये चैम्बर में साइड कुछ परेशानी थी, अगर आपने एयर पार्टिकल ओस, it will collide with the air particle, it will smash, उनके साथ टूट गई, अच्छा लगे समझ, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने उसको वैक्यूम कर लिया, अब इसमें कुछ नहीं, खाली क्लोरोफिल, ऐसे परेशान हो, मैंने चार्ज किया प्लस,
अमिश पकड़ रोड में। अब मैं क्लोरोफिल ए हूँ, ये रॉड्स मेरे पास है, मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, पूरा वैक्यूम, मैं कैसे जाऊँगा? समझो, क्लोरोफिल ए आ गया विद चार्ज प्लस, हिंट मैंने आपको दे दिया, विद चार्ज प्लस शाबाश, मुझे वहाँ से यहाँ तक जाना। बकर क्यों बतला अस्वाडन डीसी करंट क्या था? विद रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या था? रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या था? रेडियो। जो ऐसे 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 देखो, पॉजिटिव वो रेडियो फ्रीक्वेंसी था, इमर ऑर्डर, इमर पॉजिटिव नेगेटिव, इट यू पॉजिटिव बाइंड मिट जाएगा यह तो ऑर्डर से पॉजिटिव बिकॉज़ पॉजिटिव पागल ऐसे कैसे अरे प्लस पागल लाइक चार्ज रिपल ऐसे कर खास जो जोकर पागल अच्छा कैसे रिपल बिल्कुल इवन नेगेटिव अच्छा कैसे पॉजिटिव इवन नेगेटिव इसके बाद हो ये नाम समझ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे रिपल तो कैसे पास है रिपल से नेगेटिव कैसे पठे पॉजिटिव भी पठे नेगेटिव भी इसके पक इन पैरेलल क्वेश्चन व्हाट टू हो भी कैसे कराएंगे भाई एम ना आरटी पे मेरा कंप्यूटर कोर्स आ गया, कुछ और भी आ सकता है, तो मैंने ऐसी डीसी करंट इसको लगा दिया प्लस और नेगेटिव कि मुझे खाली क्लोरोफिल ए आना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मैंने किया, था पॉजिटिव 8 नेगेटिव 3 वो नेगेटिव 4 पॉजिटिव 5 ऐसे होता है। अगर क्लोरोफिल अच्छा क्लोरोफिल आके स्पेक्ट्रम इसके फ्रीक्वेंसी अच्छा अच्छा स्पेक्ट्रम ये जो क्लोरोफिल आर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी है। अब मैंने सेपरेट किया, बाकी को बाहर फेंक दिया, अब यहां से क्या आया कैसे मैंने क्या पता थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी और डीसी करंट से ऐसे ऑप्टिमाइज किया कि खाली क्लोरोफिल ए यहां से वहां तक चल गया। समझो अब क्या आ गया क्लोरोफिल खालिस्तान आ गया, अब क्लोरोफिल ए युगो इक्वल वेरी मास आमत रहा तो देखिए ये भी चांस है कि कोई और मास भी जिसका वजन 320 होगा वो भी आ सकता है। मैं क्या करूं यूं इसमें आ गया ये कंपाउंड, वहां से मैंने डाल दिया आर्गन गैस डाल दिया, तो क्या कोलाइड क्या ये हो गया फ्रैगमेंट। अब इसकी फ्रैगमेंटेशन हो गई, इसका सर कट गया टक से, मेरा सर कट गया। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारे सर का वजन सेम, पॉसिबिलिटी है लेकिन 80% पॉसिबिलिटी है कि जो इसका सर होगा मेरे सर से पॉसिबिलिटी 80% नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी अगर मैं कहूं टुकड़े 100 टुकड़े हम सेपरेट बोल के 100 मैं करूं 100 टुकड़े जरूर ये पॉसिबिलिटी कम है कि हर एक फ्रैगमेंट का वजन भी सेम होगा। समझिए तो फ्रैगमेंटेशन पैटर्न अलग अलग होगा हर एक कंपाउंड का। अब इसको टुकड़े कर दिए कैसे, आई पुट आर्गन गैस विद नोन कोलिजन एनर्जी, व्हाट एनर्जी कोलिजन एनर्जी, सो या कोलिजन एनर्जी प्लीज रिमेंबर इट, कैपिलरी वोल्टेज, डिसॉल्वेशन टेंपरेचर, डिसॉल्वेशन वोल्टेज एंड कोलिजन एनर्जी, डोंट फॉरगेट दिस, ये सारा और रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब फ्रैगमेंट से पैटर्न कहां आ गया इस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में थर्ड में, वहां पर भी मैंने ऑप्टिमाइज किया रेडियो फ्रीक्वेंसी प्लीज और डीसी करंट, वहां पर भी मैंने स्क्रीन किया नोन फ्रैगमेंट्स। अब इसमें फ्रैगमेंट्स आएंगे, इस कंपाउंड को मैंने फ्रैगमेंट किया, अब बहुत सारे फ्रैगमेंट्स आएंगे एंड इट विल हिट डिटेक्टर, डिटेक्ट करेंगे, फ्रैगमेंट बहुत सारे होंगे और जो फ्रैगमेंट ज्यादा होगी, फ्रैगमेंट ए बी सी एंड डी, वन फ्रैगमेंट ए, फ्रैगमेंट बी, फ्रैगमेंट सी, फ्रैगमेंट डी, कंपाउंड के अलग अलग फ्रैगमेंट में छाला अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। अब क्या होगा इन फ्रैगमेंट्स में ज्यादा डोमिनेंट सपोज फ्रैगमेंट ए की है सपोज, वो इट्स हिटिंग डिटेक्टर, उसके बाद फ्रैगमेंट बी की है क्या है, तो मैंने पता कर लिया जो फ्रैगमेंट ए है इसकी ज्यादा हिट कर रहा है, इसकी डोमिनेंस, इसकी एबंडेंस
डोमिनेंस ज़्यादा है, तो ये उसको बोलूँगा क्वांटिफायर। क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा? क्वांटिफायर। तो उसके बाद आता है बोलूँगा क्वालिफायर। क्या बोलूँगा? क्वालिफायर। अब आप मेरे पास क्या है? पेरेंट आयान कौन सा? क्लोरोफिल। उसका वजन क्या है? 320। क्या वजन है? 320। शाबाश। उसको बोलते हैं प्रीकर्सर। क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर। क्या बोलते हैं? और फिर डॉटर आयान क्या आएगा? प्रीकर्सर। उसको बेटा फिर डॉटर आयन 1, डॉटर आयन 2। मैंने अब कंपाउंड को बता दिया। अब एविडेंस क्या आ गई? आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसी पे काम करना है। समझ लो आप क्या बोले? अच्छा हीरो हाँ हीरो बहुत सारी From starting. हाँ स्टार्ट करो। तो आपने क्या समझ लिया? आपको क्या समझ आ गया मुझे ये बताओ बस। स्टार्ट से Sir, from start. इंग्लिश हिंदी बोलो। Okay. हिंदी Okay, sir. हमारी अंग्रेजी थोड़ी वीक है। Okay. सब ये मेरी भी है। आई स्पीक इन हिंदी है। फील हिंदी नाइस। फर्स्ट कश्मीरी, अब शी नॉट कश्मीरी। सेकंड हिंदी, थर्ड इंग्लिश हमारी वीक होती है। बोलो आप हिंदी। पहले हमने सर एक मिक्सचर लिया जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स थे, हमारा एम क्या था? तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स नहीं, एंड separate. सेपरेशन। हमने सेपरेट कर लिया। ओके, कैसे कर लिया? उसमें हमने ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जिसमें हमने एक पेपर क्लॉथ लिया, क्योंकि पेपर क्लॉथ जो है उसमें पेपर स्ट्रिप ऑफ पेपर स्ट्रिप ऑफ पेपर पेपर, की है। हाँ, उसमें वो कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या जो बात है वो मूव होता है लिक्विड शाबाश फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। शाबाश तो उससे हमने क्या किया, उससे हमने फिर सेपरेट किया शाबाश। एज पर द हाइट। हाँ तो अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद क्वांटिफाई करना था कि कितना अमाउंट अवेलेबल है। ठीक है। तो उसमें हमने वो डिफरेंट उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें पास किए और उसके बाद उसमें देखा हमने क्या एब्जॉर्ब कर उसके बाद आप बताओ वो क्वालिफाई कर लिया। इसमें दिक्कत आ रही थी हमको, इस टाइम कंज्यूमिंग और इसमें एक्सपेंसिव कम है, हमने एक्सपेंसिव नहीं कर लिया। उसमें सर हमारा होता है पंप, सर कॉलम होता है और सर स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस, कॉलम एंड पंप। ये सर एंड फिर उसमें क्या उसकी कहानी क्या है? सर उसमें सर एक हम प्रेशर क्रिएट करते हैं सर, देन ये कंपाउंड पास होता है टू कॉलम, शाबाश कॉलम से 18 शाबाश। उसके बाद मैं था सर रिटेंशन टाइम पे हाँ काम करते हैं। अलग तक टाइम पे कंपाउंड जी अलग अलग टाइम पे अपना अपना कंपाउंड आएगा, इसको बोलते हैं रिटेंशन टाइम। ये भी समझो खुद बात समझ के सुबह समझो आप हो जाओ। अलग अलग कंपाउंड की अपनी अपनी आरटी वैल्यू होती है, आरटी वैल्यू रिटेंशन टाइम। लेकिन दिक्कत ये है कि सेम कंपाउंड हो सकता है। हमने क्या किया? मास उसकी कहानी मैंने आपको बता दी। फिर आपने सर फ्रैगमेंट शाबाश बना दिए सब। शाबाश वेरी गुड। अब जो डोमिनेंट आया है क्वांटिफायर क्वालिफायर, शाबाश। अब इन दो का क्या करेंगे सर? हाँ वही है शाबाश शाबाश। अब हमारे पास पहले थे प्रिकर्सर आयन, यस सर। उसके बनेंगे डॉटर आयन। अब जिसकी अबंडेंस ज़्यादा होगी वो हम लेंगे 2, हम टेक ऑल्सो 3, बट आई एम टीचिंग 2 डॉटर आयन्स। ये कंपाउंड है, इसके टुकड़े हो गए, इसमें 2 उठा दिए, उनकी एविडेंस ज़्यादा है जो विच हिट्स मोर टाइम डिटेक्टर, इनको मैंने उठा दिया, एक को बोल दिया क्वांटिफायर क्वालिफायर, उनकी बना दी कैलकुलेशन करो बस। एब्जॉर्बेंस पे जब हम एब्जॉर्ब नहीं, जहाँ एब्जॉर्ब नहीं होता है, यहाँ है डिटेक्टर PMT2। फिर जब हमने कैलकुलेशन कर्व बनाई सर, कैसे डिटरमाइन करते हैं हां यही हमारा क्लोज है। हाँ डॉटर आयन आ गया, क्वालिफायर आ गया, क्वांटिफायर आ गया, वो हिट करते हैं, उनकी बनेगी कैलकुलेशन करो ना, मेक रेशियो ऑफ दीज, तो वो स्पेसिफिक सिग्नेचर होगा उस कंपाउंड का, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ओनली 80%। ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया में इतनी इन्फेंट कंपाउंड है कि चांसेस है कि डॉटर आयन भी सेम होंगे। ऐसे में समझाने की है।
वो मैंने बताया पहले ही। इसमें हमें दिक्कत होती है, GCMS में हम चार्ज क्रिएट करते हैं, वी नॉक डाउन द इलेक्ट्रॉन, लेकिन LCMS में हम नॉक डाउन नहीं करते। यहाँ सब RC गलत फहमी है RC में कि हम नॉक डाउन इलेक्ट्रॉन करते हैं, नहीं, तो हम ऐड करते हैं प्रोटॉन थ्रू मोबाइल डिवाइस। ये किसी को पता नहीं है यूनिवर्सिटी। GCMS में हम करते हैं नॉक डाउन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, बन गया पॉजिटिव, लेकिन हम ऐड करते हैं प्रोटोनेशन करते हैं LCMS में। और GCMS होती है लाइब्रेरी, दैट्स कॉल्ड मिक्स्ड लाइब्रेरी, दैट्स कॉल्ड, इसमें नहीं होता मिक्स्ड लाइब्रेरी। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मोल्ड बाद में डिस्कस लंबा हो जाएगा ना। और समझ कभी कभार कोई कंपाउंड हम सेपरेट कर रहे होते हैं, उसमें हमारा जब हम एब्जॉर्बेंस देखते हैं तो एक पीक आ जाता है। ये मेरे पास डिटेक्टर है, क्या है? यस डिटेक्टर। क्या है? यस कौन सा है? LCMS का। यस सर। इसमें होते हैं डायोड्स। क्या होते हैं? डायोड्स। 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 वो क्या होता है? ऐसे होता है। देखो बेटा, ये ऐसे होता है, कैथोड क्या होता है? इस पे अब आ गया आपका कंपाउंड फ्रैगमेंट्स, वो टकराए इस पर, वहां से निकला इलेक्ट्रॉन, एक क्या निकला? यहाँ एक और होता है डायोड, वहां से निकले 2, ये आगे इस पे, यहाँ से निकली 3, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट्स इलेक्ट्रॉन? करंट। करंट। तो यहाँ पे बेटा ऐसे काम करता है, सीरीज ऑफ डायोड्स, सीरीज ऑफ कैथोड्स, when the compound will strike on the cathode, it will emit electron. That electron will impede on other diode, it will emit 2 electrons, 4, 8, 16, ये चलता रहेगा, and a pump of electron will come and electron is current, and that current ज़्यादा है या कम है depend upon the fragmentation. fragmentation ज़्यादा बड़ा होगा, current ज़्यादा होगा, fragmentation कम होगा, current कम होगी. On the basis of current, we will quantify it. हाँ, GCMS में, LCMS में क्या था हमारा? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, मोबाइल गैस। GCMS में हमारा गैस होता है, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस एंड हीलियम गैस। हीलियम के सॉरी, हीलियम, नाइट्रोजन एंड एयर। हाइड्रोजन क्या करता है? नतीफली ज़्यादा हीट करा, एंड हीलियम इज फ्रैगमेंटेशन पर्पस। यहाँ पर आर्गन है, आर्गन करता है कोलिजन एनर्जी, वहाँ होता है हाइड्रोजन, क्यूंचिंग, क्या बोलते हैं? क्यूंचिंग, क्यूंच द गैस, हिट द मॉलिक्यूल विद द क्यूंचिंग एंड फ्रैगमेंट्स। तो बड़ा इसमें बहुत टेक्निकल टर्म्स है, आई अवॉइड टेक्निकल टर्म्स बिकॉज बिल्कुल कंफ्यूजन। क्यूंचिंग, मैंने क्यूंचिंग वर्ड यूज ही नहीं किया, आई यूज सिंपल कॉमन हिंदी और इंग्लिश वर्ड ताकि आपको पूरा समझ में आए। यहाँ अब मुझे पता है आपको दिक्कत आ रही है क्वांटिफायर और क्वालिफायर में, आई अंडरस्टैंड योर प्रोफेस, यहाँ आपको दिक्कत आ रही है, वो अभी कर लेंगे हम इंशाल्लाह। मैं भी कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ, आई एम वर्किंग ऑन